So we were studying about the various agencies of UNO, and prior to this topic what we have discussed about UNESCO, UNICEF, and in today's topic what we are going to discuss, that is WHO, World Health Organization. In today's scenario, the agency is not unknown to anyone, because during the time of the pandemic it played a very important role in collecting the data from the various countries and to tell them about and make them aware about the particular pandemic and what precautions must be used. So every time they are just releasing their guidelines on which the people are going to be aware about this pandemic of corona, and whatever steps need to be taken by the countries, it is also guiding in the various sense. And especially they are one more thing we can see here, they are just appreciating the countries which are able to prevent the disease, or they have made it limited in the particular areas only. So whatever efforts made by the particular countries, they are appreciating those ones and telling others to follow the same criteria there. So of course WHO is a very important organization and agency of UNO, and it is working, as the name is very clear, World Health Organization. It is going to make the efforts towards the areas where the efforts need to be made in sense of improving the health of the world citizen. So here WHO, World Health Organization, it is a specialized agency of United Nations responsible for इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये? इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ मेंटेन करने के लिए इट इज रिस्पॉन्सिबल. सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज कमिंग विद द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मेन ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? द अटेनमेंट बाय ऑल पीपल ऑफ द हाइएस्ट पॉसिबल हेल्थ लेवल ऑफ हेल्थ, कि वर्ल्ड में सभी को हाइएस्ट पॉसिबल लेवल जो हेल्थ का है वहाँ तक सभी रीच करें, पहुँचे. सिर्फ ये नहीं कि हैंडफुल लोग जो हैं दे आर हेल्दी वन एंड द रेस्ट आर नॉट. सो द मोटिव इज टू अप्रोच टू द ऑल वन एंड मेक एवरीवन हेल्दी. दैट इज द मेन मोटिव ऑफ WHO, दैट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. It was formed on 7th of April 1948. See children, these particular dates and the area and the place and the person founder person, these are the very important things for the MCQs 1 mark questions, because these questions can be asked there. So you have to be very much clear and alert about learning the dates. फॉर्मेशन कब हुआ इसका? 7th April 1948. एंड हेडक्वार्टर्स कहाँ है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है. The headquarter of WHO is in Geneva, Switzerland, and it was formed on 7th April 1948. Then इनके जो हेड हैं वो टेड्रोस, 3 बताए इसमें. टेड्रोस एडनॉन डायरेक्टर जनरल जो है, सौम्या स्वामीनाथन डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है इसकी, जेन एलिसन जो है वो डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है. So these three are making the combined office of WHO as a head. They are guiding the institution. कौन कौन से नाम आए देखें आप? टेड्रोस एडमन डायरेक्टर जनरल, सौम्या स्वामीनाथन and that is she is the deputy director general, and Jane Ellison deputy director general. These three are the heads of WHO. Up now what WHO is doing, what WHO is functioning, in what areas, that we will see now. It is advocating of universal health care. यूनिवर्सल हेल्थ केयर को एडवोकेट करना, सभी की हेल्थ की लिए गाइडलाइंस क्रिएट करना, वैक्सीनेशन की बात करना, या वर्ल्ड में कहीं कोई ऐसी कोई इशू क्रिएट हो रहा है हेल्थ को लेकर, उस पर फोकस करना. मॉनिटरिंग पब्लिक हेल्थ रिस्क. अब पब्लिक हेल्थ रिस्क को मॉनिटर करना, जैसे कि कोरोना के टाइम में वो कर रहे हैं कि कौन सा डिजीज़ ऐसा है जो बहुत पैंडमिक बन सकता है. पैंडमिक अनाउंस करने का राइट भी WHO के पास में कि दिस इज़ द पैंडमिक, महामारी कौन सी है, क्योंकि फर्स्ट दे विल सी, दे ऑब्जर्व कि हाउ मच थिंग्स आर वर्स्ट एंड वैक्सीनेशन इज अवेलेबल और नॉट, एंड हाउ मेनी पीपल आर गोइंग टू बी इन्फेक्ट फ्रॉम दैट. ऑन दैट बिहाफ दे अनाउंस इट पैंडमिक. देन कोऑर्डिनेटिंग रिस्पॉन्सेज टू हेल्थ इमरजेंसीज. अब हेल्थ इमरजेंसीज की में जो है वो कोऑर्डिनेट करना कि कैसे किस पर्टिकुलर कंट्री में कोई हेल्थ इमरजेंसी है, वहाँ पे दे हैव टू रीच, दे हैव टू गो देयर. जैसे WHO की टीम जो है
वो चाइना में जब ऐसा हुआ था कि कोरोना स्प्रेड इन चाइना, तो दे सेंड देयर टीम देयर टू नो व्हाट इज़ द फैक्ट। तो दे यूज्ड टू सेंड द टीम ऑल्सो कि कहीं ऐसा कोई ओरिजिन हुआ है किसी डिजीज़ का, किसी इशू का, तो उसको सॉल्व आउट करने के लिए दे नीड टू सेंड देयर टीम ऑल्सो। प्रमोटिंग ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग। अब ह्यूमन हेल्थ को प्रमोट करना और उनकी वेलबींग के लिए वर्क करना, दैट इज ऑल्सो द फंक्शन ऑफ हिम। इट प्रोवाइड्स टेक्निकल असिस्टेंस टू द कंट्रीज, सेट्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस। अब क्या करता है ये? टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। उनको लगता है कि हाँ पर्टिकुलर कोई कंट्री ऐसी है जो अंडर डेवलप्ड है, डेवलपिंग है, तो उसको टेक्निकली ग्रूम करने के लिए दे नीड टू पुट द एफर्ट दे आर डूइंग एंड दे सेट्स द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइन जो होती हैं वो प्रोवाइड करना से लोग उसके अकॉर्डिंग वर्क कर पाएँ। नेक्स्ट वन, कलेक्ट्स डेटा ऑन ग्लोबल हेल्थ इशू। अब ग्लोबल हेल्थ इशू के लिए डेटा कलेक्ट करता है। ऑन दैट बिहाफ दे यूज टू अनाउंस द पर्टिकुलर कंट्री इज हेल्दी और दिस कंट्री नीड टू पुट मोर एफर्ट्स इन द हेल्थ स्फीयर। सो दिस डेटा इज गोइंग टू बी कलेक्टेड बाय द WHO एंड थ्रू द वर्ल्ड हेल्थ सर्वे। एक हेल्थ सर्वे करवाता है, उससे वो सारे डेटा को कलेक्ट करता है। ऑन बिहाफ ऑफ दैट डेटा इट टेक स्टेप्स हाउ द थिंग्स शुड बी ग्रूम्ड। उन डेटा के बिहाफ पर वो स्टेप लेता है कि कौन से स्टेप हमें आगे कौन सा एफर्ट हमें आगे करना है उस वर्स्ट कंडीशन को या जो अपनी कंडीशन ख़राब है उसको बेटर ऑफ करने के लिए। सो क्या है ये? WHO इज़ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इट इज़ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द, किसकी एजेंसी है ये? यूनाइटेड नेशंस की। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ। सभी इंटरनेशनल लेवल पे हेल्दी रहें तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? The attainment by all people of the highest possible level of health। सभी को अटेन करना, कौन सा हेल्थ लेवल जो सब लोग जो हैं वो हेल्दी रहें। देन फॉर्मेशन कब हुआ इसका? 7 अप्रैल 1948। हेडक्वार्टर इज इन जेनोवा, स्विट्जरलैंड। देन हेड्स आर 3 आर देयर। टेडोरिस एडमंड डायरेक्टर जनरल है, स्वामीनाथन डेप्यूटी डायरेक्टर जनरल है एंड जेन एलिसन डेप्यूटी जनरल है। 3 आर देयर। ब्रॉड मैंडेट इंक्लूड्स, क्या करता है ये? एडवोकेटिंग द यूनिवर्सल हेल्थ केयर को एडवोकेट करना। देन मॉनिटरिंग पब्लिक हेल्थ रिस्क, कि किस पब्लिक हेल्थ रिस्क को मॉनिटर करना, देखना रिस्क फैक्टर कहाँ पे कैसा है। कोऑर्डिनेटिंग रेस्पॉन्सेज और टू हेल्थ इमरजेंसी में आपस में कोऑर्डिनेट करना। देन प्रमोटिंग ह्यूमन हेल्थ एंड वेलबींग। देन provides technical assistance to the country, sets international standards and guidelines। स्टैंडर्ड और गाइडलाइन को क्रिएट करना, जैसे कि अभी कोरोना का टाइम में करी। These guidelines need to be followed. Nobody should step out. Everyone should make quarantine to them. So these guidelines are provided by the World Health Organization because they are first going to see the situation. First of all, they do the survey, they do the observe the things, then they release the guidelines that should be followed by the other countries. Then they collect the data on the global health issues through the world health surveys। और जो हेल्थ इशू को लेके जो डेटा कलेक्ट करने का काम होता है हेल्थ सर्वे के थ्रू, वो काम भी कौन करता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम कहते हैं WHO। सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ एजेंसी ऑफ द UNO विच इज़ वर्किंग टूवर्ड्स द हेल्थ ऑफ the people of the world people, not for any single country. So in this time of pandemic we can see the efforts done by the WHO and still it is keeping eye on each and every country and the data of spread of corona and the death rate and the things and the vaccination, all these things are going to be observed by the WHO. So this is the topic which is very important. You have to learn the terms whatever I written on the blackboard. PDF I will send you. You need to read the PDF and the notes properly, so when the question is coming exams you will be able to solve the answers easily. So that's all for today. Thank you so much.